What a great fest. I know it's the second year. So for everybody who's organized the fest, ek zordar taliyan, because I know that it's grown from last time. And it's the need of the hour. When you talk about World Health and Wellness Fest, today when we see people do really, everybody works hard, everybody's trying to find their niche, find themselves, young, old, everybody's discovering themselves. The one thing that we need to focus on in a country like ours is wellness and health. It's very important. So I'm really happy that I'm here. Thank you so much. And all right, we heartily welcome you to Jaipur, to World Health Wellness Fest. Okay, so should I start with the session? Should I be nervous? Definitely not. Okay. All right. The first thing that comes to my mind, actually all of our mind, that is roadies, with your name and your passion for bikes, which interestingly, we have heard that you have an Indian bike. Is it? You have an Indian bike. Yeah, I do. I'll tell you about the Indian bike, but yes. Exactly. So I wanted to ask about the same. Like, हमारी audience ये जानना चाहती है कि why did you make that and named it as Indian bike particularly? No. So I think there's a bit of a confusion in the Indian bike. There is a bike company that I'm part of. It is an Indian company. The company is called Ultraviolet. It's a company based out of Bangalore. Boys, Indian boys, everything made, nothing imported from our neighbors. And it's an electric motorcycle, so it's good for when we talk about health and wellness and environment, it's also part of that. And I think like Royal Enfield, when you see Royal Enfield abroad, you're so proud that it's an Indian-made product used abroad. It fills my, chest with pride. And I have a feeling that Indian products are global level products. Today, the way they're getting designed, the tech behind it. So that is why I was part of this Indian bike company called Ultraviolet. Oh, interesting. Yes. And how your love for bikes started? My dad was in the army, he just retired a few years ago. And he was in the Rajputana Rifles. That's why my name, I'm Sikh, but my name instead of being Ranjit or Ranveer or Ranbir is very Rajasthani because my dad was from the Rajputana Rifles. So it's Ranvijay, which is a very Rajasthani name. ये तालियां मेरे माता पिता के लिए. So growing up, army में ना एक so my dad was also used to ride a bike. My chacha was also in the army, riding a bike. But army में एक सोल्जर भैया होते हैं जिनकी ड्यूटी होती है कि वो एनफील्ड पे, ग्रीन एनफील्ड पे यूनिफॉर्म पहन के, वो हेलमेट लगा के पूरे दिन इधर से उधर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, पार्सल्स लेके जाते थे. आई यूज्ड टू लुक एट हिम, यार कमाल की जॉब है यार, मोटरसाइकिल पूरा दिन चलाना और इसके मतलब दिस इज हिज जॉब. सो आई वाज फैसिनेटेड विद दैट एंड थ्रू आउट माय लाइफ आई सॉ people that I admired, army officers wearing their Ray-Bans, riding bikes, and then my chacha was in the ASC. अगर आपने 26 जनवरी की परेड देखी है back in the 90s, he was the captain of the Tornadoes team. Interesting. 8 Enfields, 42 people, the guy climbing the ladder, saluting the president. So that was my chacha. So I was grown in, I was brought up in that daredevil atmosphere. So I loved bikes since then. Who wouldn't then? All right. So now that you have 2 beautiful daughters, do you think it is therapeutic? I mean, I have 1 daughter, 1 son. Oh, okay. My bad. No, I wish there were 2 daughters. But, okay. Don't tell my son. He's very young. So don't, like, बाद में जाके throwback Ranvijay's video, he didn't love his son, मत करना. But I wish I had 2 daughters, yeah. All right. So do you think it is therapeutic to visit the places with your family? और जहाँ आप family के साथ घूम रहे हैं, how much Priyanka is involved with it? Like, does she like this, or she's happy to roam around with you? And how does she feel with it? ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं वापस घर नहीं जा पाऊंगा ये सवालों के बाद. And I have seen your Instagram video as well. Like, you were riding bikes and tracking, and then suddenly it changed to with your family, and then. So it's beautiful. I think it's beautiful. So what do you think, like? हाँ, तो सोशल मीडिया हम सब के लिए है. उसको कैसे इस्तेमाल करना है ये हम पर डिपेंड करता है. मेरे को ऐसा लगता है कि मैं सोशल मीडिया पे वो चीज़ें दिखाना चाहता हूँ जो हो रही है मेरे साथ लाइफ में. कुछ सालों पहले मैं एक पहाड़ पे, मेरे पे आग लगी है, पहाड़ से कूद रहा हूँ नदी में. वो उस टाइम पे मेरी लाइफ में चल रहा था. एडवेंचर्स में था, मेरे शोज ऐसे थे, ऐसी चीज़ें मैं कर रहा था, मोटो क्रॉस कर रहा था.
अब मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको कोई फॉलो करता है या आपकी कोई इन्फ्लुएंस है अगर आपका, अगर वो देखे कि यार ये एक्चुअली मुझे इसके जैसा बनना है, लेकिन उसको पता होना चाहिए कि मैं सुबह उठता हूँ तो एक बच्चे को उठाता हूँ, फिर उसको स्कूल छोड़ने जाता हूँ, फिर उसको उठाता हूँ, फिर किसी क्लास में लेके जाता हूँ। एक असली इंसान की जो ज़िंदगी होती है वो है। तो अगर आपको एस्पिरेशन भी करना है तो ये देखना चाहिए कि सिर्फ एकदम जहाज में घूमना वो नहीं है रियल लाइफ। सो द हैप्पीनेस इज कि मैं उनके साथ पार्क में जा रहा हूँ, बीच में जा रहा हूँ। जितना ज़्यादा वो नॉर्मलाइज किया जाए उतना ज़्यादा आपकी एस्पिरेशन में ना ऐसे फन्ने खां टाइप आइडियाज नहीं होते कि एक दिन मैं भी बनूंगा। करना तो आपको एज अ फादर नैपी चेंज करनी पड़ेगी। इट्स द नॉर्मल थिंग, ठीक है। एज अ फादर आपको उनके साथ, अगर आप, मैं चाहता हूं मेरे बच्चे खूब फिट रहें फिजिकली, जब तक मैं उनके सामने नहीं लटकूंगा ना तब तक मेरे बच्चे नहीं लटकते। अब मेरा जो 15 महीने का 16 महीने का बेटा है, तो आई डोंट नो अगर आपको दिखा सकता हूँ मैं वीडियोस, बट मैं लटकता हूँ उसके सामने, कुछ पुलअप्स वुलअप्स करता हूँ तो वो ऐसे करता है हैंग हैंग, उसके भी शब्द सही नहीं। देन वो अभी 5-6 सेकंड के लिए लटक रहा है। मेरी बेटी 1-1.5 मिनट तक लटक जाती है, और फिर वो मंकी, वो इसीलिए नहीं कर रही क्योंकि मैं बोलता हूँ, वो मेरे को देखते हैं करते हुए। बिकॉज किड्स ना दे वांट टू डू जो उनके माता पिता करें। आप चाहते हैं कि पढ़ाई करें, किताब खोल के बैठ जाओ, थोड़ी देर बाद बच्चे आएंगे किताब खोल के बैठ जाएंगे। दे वांट टू बी लाइक द पेरेंट्स। उनके सामने आप पुशअप्स करोगे वो लेट जाएंगे, अजीब सी कुछ हरकत करेंगे, लेकिन उनको लग रहा है एक्सरसाइज कर रहे हैं। उनके सामने आप योगा मैट लगा के ऐसा करेंगे सिटअप्स, वो भी करने पड़ते हैं। और इसके बहुत सारे उदाहरण मेरी लाइफ में, और उनको फिर मैं डिपिक्ट करता हूँ ताकि लोगों को ये ना बहुत आसान है कि अरे आप किसी को इंस्पायर कैसे करते हैं, बाय जस्ट शोइंग देम कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। yeah. मेरी लाइफ में संकट है, मेरा हाथ टूट गया, दिखा दो कि हाथ टूट गया। कि मैं भी, अभी उम्र हो गई लेकिन हरकतें वही हैं, बाइक चलाना है, ये करना है, एडवेंचर्स करने हैं। हाथ टूट गया पर इसका मतलब ये नहीं है कि होप छोड़ दो, वर्कआउट मत करो, कुछ और पकड़ लो। सो व्हाट्स हैपनिंग ऑन माई सोशल मीडिया ये कि अब जो चीज़ें लाइफ में चल रही हैं वो दिखाता हूँ। दैट इज़ वाई आपको लगता है कि अरे, तो अब मैंने एक बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस डिसीजन लिया है कि मैं काम थोड़ा सा कम करूं। करना चाहता हूं मैं काफ़ी काम, मतलब बट मेरे बच्चे दोबारा 6 और 1.5 साल के दोबारा कभी नहीं होंगे, ठीक है। और जैसे ये 13, 14, 15 साल के होंगे, इनके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, स्पोर्ट्स, ट्रैवल, इनके इंटरेस्ट, इनके पैशन, पियानो, बावर्ची बन, कुछ भी बनना है ना, वो शुरू हो जाएगा। तब इनके पास मेरे लिए टाइम नहीं होगा डेफिनेटली। तो अभी कुछ 7-8 साल की बात है, 10 साल की। सो मेरे को अपने आप को अवेलेबल करना है उनके लिए। इसीलिए आप ज़्यादा अब वो देख रहे हैं कि हम लोग एक साल कहीं ट्रैवल पे कर रहे हैं। ऑफ कोर्स ये सब विदाउट मेन हेडक्वार्टर्स प्रियंका के बगैर नहीं हो सकता है, ठीक है। मैं तो बोल देता हूँ कि अच्छा मैं अभी जयपुर में हूँ, कल परसों वापस घर आ रहा हूँ, चलो डेजर्ट चलते हैं। तो बोलना और वो सैंडविचेस तैयार होना और पानी की बॉटल्स तैयार होने में बहुत अंतर है। वो सब एडमिन, लॉजिस्टिक्स वो संभालती है। तो उसके बगैर मतलब आइडिया सिर्फ ऐसा एक बबल होता है और वो फट सकता है। वो असली होना, एग्जीक्यूशन इज बिकॉज ऑफ हर, बिकॉज शी रन्स अस आवर लाइफ, एंड फुल कूडोज टू हर। पर दैट्स व्हाई यू सी लॉट ऑफ दोज वीडियोस, क्योंकि अभी हम लोग का कॉन्शियस एफर्ट है कि जब तक ये बच्चे निकल नहीं जाते अपनी अपनी राहों में, तब तक हम वी शुड बी अवेलेबल फॉर देम। माय फादर इज इन द आर्मी। वो फील्ड एरिया में होते थे, रजौरी, पुंछ, JNK में। वो 2 महीने के लिए आते थे, लेकिन वो 2 महीने में वो आदमी 24 घंटे ऐसे चौकन्ना। बच्चों ने ऐसे कुछ देख लिया तो खेलने भी जाएगा, हमारे को उठा के ट्रैकिंग के लिए भी, उसमें एक रोड ट्रिप भी जरूर होगा, दादा दादी को भी मिल लेंगे। वो 2 महीने में पूरे 1 साल का निचोड़ कर देते थे वो, क्योंकि उन चीज़ों की वजह से हम आज वो बने हैं। ऑल द टाइम दैट वी स्पेंड, पढ़ाई से बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन परवरिश टीचर्स और माता पिता घर पे होती है। तो जब वो सवाल किसी ने पूछा था ना कि कौन सी पिक्चर देखिए हम कैसे इन्फ्लुएंस होंगे, देखिए आप पिक्चर देखते हो उसमें जेम्स बॉन्ड है, देखा जेम्स बॉन्ड? एक बार ही तो देखा होगा। वो लोगों को मार रहा है जेम्स बॉन्ड। क्या इन्फ्लुएंस क्या होता है कि आप ऐसे थोड़ा ना कि सड़क पर जाके टन जॉन इब्राहिम धूम में चोर है, बड़ा सही लग रहा है हायाबूसा, पर आप चोर थोड़ा ना बन जाएंगे। पिक्चर आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। आपकी परवरिश, कि आपको पता है कि सही और गलत में क्या अंतर है,
वो होता है जब आप एक चीज देख रहे हैं एक सही उम्र पे। मेरे घर पे अंडर 13 का जो कंटेंट है वो मेरे बच्चे नहीं देख रहे, वो मेरा कंट्रोल है, मेरी जिम्मेदारी है, माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब लोग बोलते हैं कि क्या आप अपने बच्चों को रोडीज देखने देंगे, क्या मेरे बच्चे रोडीज देखने की उम्र के हैं अभी? नहीं, जब होंगे तो देखेंगे। क्या वो सोशल मीडिया पे है? नहीं, सोशल मीडिया की एक उम्र है, आई थिंक इंस्टाग्राम पे कुछ 13 साल की है, तब होगा, राइट? सो अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स लोग ना दूसरों पे डालना चाहते हैं कि आपने ऐसी फिल्म बनाई उसकी वजह से मेरा बच्चा इसमें घुस गया। नहीं, आप पहली बार तो आपके बच्चे ने वो पिक्चर देखी क्यों, आप क्या कर रहे थे उस टाइम पर? तो वही काम से टाइम ऑफ लो, क्योंकि जितने भी वेल्दी लोग हैं हमारे साथ, बहुत सारे सीनियर लोग हैं, उनके इंटरव्यूज देखो, उनके पॉडकास्ट देखो, उनसे बातें करो तो वो बोलेंगे यार बड़ा सक्सेसफुल हो गया हूँ मैं बहुत सक्सेसफुल हो गई हूँ, तो काश मुझे पता होता और मैं अपने 30s और 40s में अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाती या कर पाता। तो अगर हम उनसे नहीं सीख सकते अभी, तो हम 50-60 हो जाएंगे, 70 हो जाएंगे, फिर हम भी बोलेंगे यार आई विश आई स्पेंड मोर टाइम ट्रैवलिंग द वर्ल्ड विद माई किड्स और दिस एंड दैट। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी ट्राई टू पुट all of that I'm saying into practice. So with the WHWF Fest, you're saying that mental health and fitness, both physical and mental, are really, really important. 100% And that's what important. you do with your kids. There is no amount of success or admiration or wealth that you can enjoy if you're not healthy and if you're not mentally healthy or physically healthy. Lots of people who are doing extremely well, आपको दूर से दिखेगा वाओ वो बंदा अमेज़न का CEO, कितने बिलियंस हैं, पर घर में प्रॉब्लम चल रही है यार। आपको पता है एक खराब रिलेशनशिप में बंदा कितना अपसेट रहता है। अभी यंग एज में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं, बाद में हस्बैंड वाइफ के बीच में एक डिवोर्स कितना। तो पैसे से मेंटल हेल्थ नहीं खरीदी जा सकती। उसके लिए आपको यू हैव टू नो हु यू आर, यू हैव टू बी गुड इन कम्युनिकेशन। आपको अपने माता पिता से, अपने भाई बहन से, अपने दोस्तों से, अपने पार्टनर से साफ साफ बोलना चाहिए यार मुझे ये सही लग रहा है, ये गलत लग रहा है, मुझे ये करना है। खुद की वैल्यू होनी चाहिए। खुद की वैल्यू तभी आएगी, पैसे से नहीं आएगी। जब आपको पता है कि यार आई एम केपेबल ऑफ डूइंग दिस, मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है, मैंने बहुत ज़्यादा पियानो चला है, खुद की सेल्फ वर्थ। और अगर खुद के साथ आप खुश हो तो बाहर आप खुशी दे सकते हो। चाहे आपके आसपास नेगेटिविटी भी हो, आप वो बदल सकते हो। लेकिन अगर आप बोलोगे क्योंकि मेरे आसपास डिप्रेसिव लोग हैं तो मैं भी डिप्रेस हो जाता हूं, फिर वो आप यू लुकिंग एट आंसर्स आउटसाइड। आपको आंसर अंदर ढूंढना है। हाउ कैन आई मेक दिस बेटर? अगर ये लोग हैं और ऐसे हैं तो मैं भागता हूं, मैं भागूंगा, मेरे को देख के ये भागेंगे, तो शायद मैं एक परिवर्तन ला सकता हूं। I'll move forward with my questions. Aryan will take over. हेलो सर, Hi. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है। एक्चुअली हम सब आई थिंक यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, आपके सोशल मीडियाज़ पे सब पे, तो आप ट्रैवल काफ़ी करते हैं, आपकी फैमिली के साथ हो या फिर अकेले हो, आप ट्रैवल काफ़ी एक्सप्लोर एंड कभी बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। तो मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि कितना ज़रूरी है दुनिया घूमना या फिर जगहों को एक्सप्लोर करना फॉर द मेंटल हेल्थ, और क्या आप अपने बच्चों को ऐसे एक्सप्लोर करने देंगे व्हेन दे आर लाइक हमारी एज में जब वो आएंगे, व्हेन दे आर 20 और 21? क्योंकि आजकल के जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को काफ़ी ज़्यादा मैंने देखा रोकने लग गए हैं। मेरे नहीं रोकते बट मेरे को लगता है वो रोकने लग गए। तेरे को मार पड़ने वाली है बहुत जल्द। आपके हिसाब से मेंटल हेल्थ और वेलनेस के लिए घूमना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या एक्सप्लोर करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? और अभी जो पेरेंट्स का एक माइंडसेट बन गया आफ्टर द कोविड एरा, तो उसमें आप क्या बोलना चाहेंगे? मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइफ में घूमना है। घूमना और फिरना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं बहुत सारी चीज़ों का धन्यवाद बोलता हूँ मेरे माता पिता की परवरिश, और वो भी बाय डिफ़ॉल्ट फौज में थे, तो आए दिन 2 सालों में तबादला मतलब पोस्टिंग होती रहती थी, ट्रांसफ़र। मैं 9 स्कूल में गया हूँ, फिर वो 9 स्कूल में मैं स्पोर्ट्स में घुस गया। स्पोर्ट्स में मतलब अलग अलग टूर्नामेंट्स, तो कभी मैं हिल वहाँ पे हिमाचल में शिमला हिल्स में था, तो वहाँ से कभी इंदौर आना, कभी देवास, कभी जयपुर, IPSC दिल्ली, ये वो कर्नाटका, तो अलग एक्सपीरियंस, मतलब ट्रैवल चलता रहा। अब क्या होता है ना कि
किताब में आप किसी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं ना, तो वो शब्द होते हैं, तो फिर आपको उस शब्द के साथ एक विजन बनाना पड़ता है। बड़ा मतलब कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर आपको सीधा, मेरे पिताजी ले गए, ये आगरा फोर्ट है, देख लिया कब बना था, इसके ऊपर जब लोग आते थे तो वो बॉइलिंग ऑयल डालते थे, इसकी जो दीवारें हैं इसके अंदर से ठंडा पानी निकलता था, तो ऑटोमेटिक एसी था। जब मैंने ये देख लिया तो मैंने ये सीख लिया, ठीक है। अभी मैं केरला गया तो वहाँ पे चाइनीज़ नेट्स है, और मेरे को पढ़ा लो चाइनीज़ नेट्स क्या है, क्या फंक्शन है, क्या लीवर है, कैसे नहीं। मैं वहाँ पे गया, एक टास्क था, हमने चाइनीज़ नेट से फिशिंग की, सीख गया। अब मेरे से सवाल पूछो मुझे चाइनीज़ नेट से, तो ऐसा अब मैं इतने देश में घुमा। अभी तुम बोलोगे मसाई वॉरियर्स होते हैं अफ्रीका में, तो मैं 3 दिन उनके साथ रह के आया हूँ। अब तुमने जो पढ़ा है और मैंने जो वहाँ पर देखा है, क्या हो गया, किसकी हवा निकल रही है, ये सीटी मारने की कोशिश थी। वेरी नाइस, थैंक यू। तो सो जितना ज्यादा ट्रैवलिंग इज एजुकेशन। अब जरूरी नहीं है, अभी इसका एक आजकल की लाइफ में ट्रैवलिंग भी, इस होटल में जाके ये फोटो, ये स्पा, तो ट्रैवलिंग मतलब व्हाटएवर योर मीन्स। मैं तो कह रहा हूँ रक्सैक पहनो, यूथ हॉस्टल्स में जाओ, ठीक है। यूथ हॉस्टल में जाते हो तो अलग अलग देशों के अलग अलग तुम्हारे जैसे बेवकूफ़ लोग पहुंचे होते हैं, जो एक दूसरे को बताते हैं, अरे यहाँ नहीं, लाइब्रेरी के पीछे, अरे यहाँ नहीं, उस म्यूजियम में फ्री है, टिकट भी नहीं देनी, फ्री में घुस जाओ म्यूजियम में। एंड दैट इज व्हाट यू लर्न फ्रॉम अदर पीपल। फिर बोलते हैं यार तुम पराठे लाए हो, थेपले लाए हो, ये देखो मैं क्या लाया हूँ, राइट। तो तुम स्पेनिश खाना खा रहे हो। जब तक घूमोगे नहीं तब तक तुम्हें, अभी तो हम लोग बोल देते हैं कि हमारे पास इतना एक्सपोजर है, वो आ गया है ऐप पे, अच्छा सुशी, दिस दैट, टेपेनयाकी एंड ऑल दैट, राइट। बट अगर आप जापान चले जाओ तो वहां पे पता लग गया ना चेरी ब्लॉसम क्या होता है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, देख लिया चेरी ब्लॉसम अप्रैल में, वेरी नाइस यार, बड़ा बहुत ब्यूटीफुल है। ट्रैवल जितना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही मेरे को अब एक्साइटमेंट है दैट आई एम गोइंग टू लिव वाइकेरियसली थ्रू माय किड्स। अरे यार व्हेन आई गो विद माय डॉटर काय फॉर अ ट्रैक, ओए होए होए होए, वो जब देखेगी पहाड़ से, ये जब वो नदी ठंडे पानी में, ओ हो, मैं आई एम सो एक्साइटेड अबाउट इट बिकॉज दैट टीचेस यू। एंड लाइफ ना, व्हेन यू स्टार्ट ट्रैवलिंग, जो ट्रेन में हमने ट्रैवल किया था अपनी मॉम के साथ, डैड के साथ, अकेले, मैं 4-5 साल का था और मॉम, मैं और मेरा भाई ट्रैवल कर रहे थे, तो कहीं इतना 24 घंटे दूर कहीं जाना है, उदयपुर से कहीं पर, तो डैड ने मेरे को 5 साल में, यू आर द मैन ऑफ द हाउस, तुम्हें अभी ख्याल रखना अपनी मम्मी का। तो पूरी रात वो चाय वाला भैया, चाय भैया, मम्मी को चाय दे दो, समोसा भैया, मम्मा। सो इट गिव्स यू रिस्पॉन्सिबिलिटी द वे यू ट्रैवल, यू नो। सो आई थिंक अ लॉट ऑफ थिंग्स कम फ्रॉम ट्रैवलिंग एंड स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स के ऊपर अगर कोई सवाल है किसी का, नहीं है ना, मैं थोड़ा है स्पोर्ट्स का, मेरे पास है, बता। स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूँ क्यों। और ये 12 साल का बच्चा बैठा है यहाँ पे, अगर ये सीख जाए आज कुछ तो मजा आ जाए। जितना आप स्पोर्ट्स से सीखते हैं लाइफ में हार जीत के बारे में, उतना आप कहीं नहीं। बिजनेस में हार गए तो शायद बोरिया बिस्तरा भी बन सकता है, ठीक है। एकेडमिक्स में आप 10th में जाके पहली बार सेकंड आएंगे तो डिप्रेशन में घुस सकता है आदमी। डिबेटिंग में आप हमेशा फर्स्ट। स्पोर्ट्स में आज हारोगे, कल तुम बोलोगे इसको मैं ना इन स्विंगर दूंगा, इसको ना स्पिन डाल दूंगा, स्लोअर वाली करूंगा, तो वहां पे खड़े हो जाइए, इसको आउट कर देंगे। आप कहते हो कि मैं आज हारा हूं ना, कल मुझे जीतना है, क्योंकि हर रोज हार जीत हो रही है। टीम स्पिरिट होती है। जब तक मैंने ये वाली बॉल नहीं डाली, तेरे को कैच नहीं आया, तब तक ये बंदा आउट नहीं होगा। तो हम दोनों की टीम बननी चाहिए। बास्केटबॉल में अगर मैंने तेरे को पास नहीं किया तो हम हार जाएंगे। टीम, फिर लीडरशिप। जब आप किसी स्पोर्ट में बेटर होते हो या आपकी लीडरशिप क्वालिटीज, तो अपने आप यार इस वाली बॉल में क्या करें, या व्हाट शुड वी डू, क्या स्ट्रैटेजी है, तो आपको पता लग जाता है हाँ यार आई कैन लीड। हाउ टू फॉलो बड़ा अच्छा स्किल है, सब लीडर नहीं होते। और एक टाइम पे लाइफ में जब आप लीडर हो वो तभी होता है इफ यू नो हाउ टू फॉलो। स्पोर्ट्स में कैप्टन बोलता है वहां खड़ा हो जा, यू नीड टू नो हाउ टू फॉलो। जब किसी को चोट लगती है, कोई गिर जाता है, वो आपको बोल रहा है ओए उठा, या किसी और को बोल रहा है उठा, उससे समझ आ जाता है कि आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं। आप उसको करेक्ट, ये डेली है, हर रोज, विदाउट गेटिंग टू सीरियस अबाउट इट। यार मैं जब तू गिरा तूने मुझे क्यों नहीं बोला, अब तू क्या उठाएगा खुद, यू नो। स्पोर्ट्स में हंसी मजाक कॉमराडरी ये इतना चलता है, और भेदभाव नहीं होता लड़के लड़कियों में। मुझे ऐसा लगता था कि जब हम लोग शाम को फौज में मतलब फुटबॉल खेलने जाते, ऐसे नहीं था गर्ल्स विल प्ले डॉल हाउस, नो,
बॉयज एंड गर्ल्स, फुटबॉल सीजन तो फुटबॉल, बास्केटबॉल सीजन तो सब बास्केटबॉल खेल रहे हैं. तो आई थिंक दैट्स द वन प्लेस वेयर यू लर्न सो मच. सो इफ यू ट्रैवल एंड यू प्ले स्पोर्ट्स, अगर आपके बच्चे इस चीज में हैं तो बस मजे आ जाएंगे. थैंक यू सर फॉर योर आंसर. कविता के लिए तालियां. लुकिंग सो गुड इन अ सूट. सूट और साड़ी में जो लगते हैं ना, अमेजिंग. व्हाट इज योर क्वेश्चन? Since you're from Jalandhar, Punjab, and it's a well-known fact that Punjabis are big foodies. कहीं छोला भटूरा, सरसों का साग, मक्के की रोटी, butter chicken, and you seamlessly look fit and fine. How does one balance and adjust their taste buds and metabolic rate? I've done 10,000 steps almost today. Okay. So this is a conscious effort because when I was younger, मैं ना सुबह 3-4 घंटे खेल रहा था स्कूल के लिए, शाम को दिल्ली स्टेट के लिए मैं बहुत सारे स्पोर्ट्स, स्कूल के लिए मैं 6-7 चीज़ें. तो जितने जलेबी, जितने छोले भटूरे, जितना घर जाके कुछ भी खा लो, पच जाता था एकदम आदमी फिट. फिर उसके बाद क्या हुआ कि आई स्टार्ट वर्किंग, और वर्क ऐसा था कि आप 16-17 घंटे काम करो. मेरा काम मज़ेदार था लेकिन उसमें इतना एक्सर्शन इतना नहीं था, पर खाना उतना ही था. द अमाउंट ऑफ कैलोरीज दैट आई वाज इनटेकिंग एंड बर्निंग वाज लेस. बट वो 25-27 तक चलता है, 28. नाउ दिस सीमलेसली फिटनेस इज नॉट सीमलेस, इट्स वेरी कॉन्शियस. आई लव ईटिंग, बट द डे दैट आई एम ईटिंग अ पिज्ज़ा, that day I would have played basketball, I would have done some weight training, and that's the day that I won't eat the pastry. The next day when I'm eating the pastry, there'll be no pizza. But I have everything. You have to. The day I'm eating ice cream, maybe I went for a run or did some activity, cycling or something. Just agar tum din ka balance kar lo, right? Sometimes you have goals. Like right now I have a goal that I have to play professional basketball for 3 clubs in Dubai next year. So now I'm working towards it. So then I'll not even eat this and that. But these small goals, then you work towards it. But otherwise, whenever you're getting to an age or something, know your body. Do not keep craving for things. Eat a little bit. But ये नहीं कि उसी दिन पिज्जा भी, उस दिन चिप्स भी, उस दिन आइसक्रीम भी, उस दिन कोल्ड ड्रिंक भी, और वर्कआउट भी नहीं. और वर्कआउट ऐसा नहीं होता है जिम में जाके. वर्कआउट इज सिंपल. बैडमिंटन खेलना पसंद है? Like badminton? Play badminton with 2-3 your friends. Just make an effort of making that WhatsApp group and say, girls, boys, badminton. Tennis खेलना पसंद है? Cricket खेलना पसंद है? Start playing. Anything that you rollerblading, do something, just activity. You don't have to have muscles. Fitness doesn't mean having muscles. Is a sport called bodybuilding. That's a different sport. Very respectful, but you have to really sacrifice. Everybody who's fit doesn't have to be a bodybuilder, right? Be fit. Matlab, can you jump from here? Can you run? Can you climb? Can you pick up some weight and put it up? मतलब mom dad के साथ जाते हो तो सूटकेस तुम्हें ही उठाने हैं ना, उतनी फिटनेस है. कैन यू पुल योर सेल्फ अप? पेड़ चढ़ सकते हो मजे के लिए. अगर ग्रैंड कैनियन गए हो तो ट्रैक कर सकते हो नीचे, वापस आ सकते हो कि नहीं. दीज थिंग्स, फिटनेस इज दैट. इट कैन हैपन विद लाइक हाउ मधुर सर वाज सेइंग कि यार अगर आज कुछ एक्टिविटी नहीं हुई तो 6 फ्लोर्स पे घर है तो सीढ़ी से चढ़ जाते हैं. शॉक योर सिस्टम. एक दिन सीढ़ी से स्टेयर्स कर लिया, एक दिन साइकिलिंग कर ली, एक दिन बैडमिंटन खेल लिया, स्क्वॉश खेल लिया, बास्केटबॉल खेल लिया. बट टाइम निकालना पड़ेगा. यू हैव टू मेक एन एफर्ट एंड यू हैव टू स्लीप वेल. लाइक देयर इज समथिंग कॉल्ड REM. यू नो व्हाट REM इज? और डीप स्लीप. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट व्हेन यू स्लीप, नींद पुराने जमाने में कहते थे उसको आती है जो मेहनत करता है, क्योंकि वो कहते हैं कि बच्चा थक जाता है, थकने के बाद जब खाते हो उसके बाद सो जाते हो. जिसको नींद नहीं आती उसको कहते हैं कि अरे वेला है. तो नींद के लिए भी यू हैव कई टूल्स होते हैं. आप थोड़ी सी बुक, किंडल पे नहीं, वैसे कोई किताब पढ़ेंगे तो थोड़ी देर बाद वो किताब ऐसा टप मुंह पे लगेगी तो अच्छी नींद आएगी. दैट्स गुड. कुछ म्यूजिक होता है, कुछ चीजें होती हैं. जैसे कई बार ऐसा होता है कि चलो आज कैमोमाइल टी पी लेते हैं. अगर वो सीधा इफेक्ट नहीं कर रही पर सबकॉन्शियसली साइकोसोमैटिक कि हाँ यार मैंने अपनी नींद के लिए कुछ करने की कोशिश की है, तो नींद पे एक उम्र के बाद जितना ज़्यादा आप फोकस करेंगे उससे क्या होता है कि वेयर एंड टेयर जो बॉडी का, जो मैं आज 3-4 फ्लाइटें पकड़ के यहाँ पे आया हूँ, थोड़ा सा ये किया है, वो तभी बैलेंस होगा अगर मैं सही सो गया आज रात को. बल्कि जब आपकी नींद कम होती है तो ऐसा नहीं होता है कि
बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर लिया, बिकॉज इट कुड एक्चुअली हर्ट यू, राइट? How would you advocate trends like veganism, keto diets, and intermittent fasting? I do not advocate any of this because I don't practice any of this. The one thing that I practice every now and then is intermittent fasting. That I practice. Is it good for you? Maybe not. So that's what when I was answering कि आपको अपना बॉडी का पता होना चाहिए क्या है. बचपन से घी खा रहे हो, पचता है, चलने दो. बचपन से दूध पी रहे हो, लोगों को पता ही नहीं है कि वो लैक्टोज इंटॉलरेंट है, पता ही नहीं. अपने बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए ना, क्या ब्लड टाइप है, इसके हिसाब से क्या ये. मेरे को पता है कि जिस दिन मेरे को अगर मैं ज़्यादा चिकन खा लूँ उस दिन मुझको ये नहीं खाना, बिकॉज ये जो अंदर वाला सामान है ना, डाइजेशन इज इंपॉर्टेंट, स्लीपिंग इज इंपॉर्टेंट. इफ योर डाइजेशन इज गुड, अगर है यहाँ पे कोई, मतलब मैं ना किसी भी चीज़ पे एक्सपर्ट नहीं हूँ, ये मेरा ही खुद का सोच है और मैं इसको एक्सप्रेस कर रहा हूँ. I think intermittent works for me because when I get up in the morning, I love coffee, and after a coffee for 2-3 hours, I'm okay, I'm energetic, I don't need to eat. तो by default my system enabled me, जब ये intermittent आया, इसके knowledge आया, इसका exposure हुआ, कुछ पढ़ा, oh wow, 14 घंटा नहीं खाने से, because human beings are hunter gatherers, मतलब पहले, अभी नहीं. तो जितना ज़्यादा वो भूखे होते थे, उतना ज़्यादा वो शार्प होते थे, क्योंकि भूख की वजह से उनके कान और चौकन्ने, क्योंकि अब और भी ज़्यादा डेस्परेशन हो गया हंट करने का. तो अगर आप कभी ट्राई करें तो ये एक्सपेरिमेंट है. मेरे लिए इट वर्कड. मुझे कीटो से बहुत डर लगता है. मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं फैट खा रहा हूँ तो मैं पतला कैसे होऊंगा, और क्या व्हाट इफ इट डजंट वर्क विद मी. तो ऐसा कहीं बड़ा, सो इट इज ऑल एन इंडिविजुअल थिंग. वॉट एवर वर्क्स फॉर यू, डू इट. इफ समबडी थिंक्स कि सिर्फ पानी पीना है एक दिन और उससे मेरा चल जाएगा, बिकॉज पानी के बिना नहीं चलेगा. अगर किसी को लगता है, बिकॉज समटाइम्स इन अ वीक व्हेन आई एम वेरी लाइक व्हेन आई हैव फ्री टाइम, नॉट इन द डेज दैट आई एम ट्रैवलिंग एंड वर्किंग, आई ट्राई टू जस्ट हैव वाटर, लाइक लॉट्स ऑफ वाटर, बिकॉज द बॉडी गेट्स शॉक्ड. व्हेन द बॉडी गेट्स शॉक्ड, लाइक क्या हो रहा है भाई, एंड द नेक्स्ट डे व्हेन योर फ्रूट्स, द फ्रूट्स आर कंज्यूम्ड लाइक पता नहीं क्या गुलाब जामुन या जलेबी आ रहा है अंदर. एक वो भी खाओ ना, क्यूकम्बर भी खाओ, तो वो बॉडी को लगता है मजा आ गया, वाह टेस्टी. So shocking the body is something I really enjoy. Just being in, like suddenly one day I'll do like 100 kilometers of cycling. So everything जो तुम्हारा, मतलब अगर जिम में जाओगे 50 kg ये वो कर रहे हो, लेकिन साइकिलिंग में जो मसल्स में दर्द होगा ना, वो कुछ और ही है. तुम बोलो मैं तो बहुत फिट हूँ यार, लेकिन किसी दिन खो खो खेल लो, ओ हो, खो खो खेल लो, उसके बाद जब उठोगे अगले दिन, एंड यू कुड बी वेरी फिट. एवरी different activity needs different muscles. So shocking the body is my favorite thing, because then you keep agile. But when it comes to diets, I follow things that work for me. And I think you should let people be. I think if anybody is making an effort, if somebody is following anything and making an effort, वहाँ पे आधी जीत हो चुकी है. That person is better than the person जो कोई effort नहीं मार रहा है. तो अगर कोई डाइट पे हो तो मैं नहीं बोलता तू डाइट पे है, मैं बोलता हूँ ओ वाओ, हाउ डज इट वर्क, इज इट वर्किंग फॉर यू. सो वो बंदे की डिटर्मिनेशन, उसकी वो 5 बारी खाना है या 2 बारी खाना है, ये वाला खाना खाना है, जो जिस इंसान की इंटेंशन है वो वहीं आधी गेम जीत चुके हैं. बाकी थोड़ा सा सबको कस्टमाइज करना पड़ता है. लाइक यू कस्टमाइज योर क्लोथ्स ना, द सेम स्टफ डजंट फिट अस, इट हैज टू बी ऐसा ऐसा ऐसा. तो बॉडी को भी ऐसा 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 ही होना है. Whatever works for you. Like water really works for me. Every time I'm feeling down, coffee of course, but water really works. I have more water, I feel energized. Of course I have to go also very quickly. Not now, but generally, but that's okay. Noted. But are you dieting? Are you doing any diet? Are you doing any diet? Yeah, okay. Hello, sir. Hello, brother. Sir, along with me, many youngsters are present here to listen to you, and looks like they have come directly मेरे from को तो the school. many नहीं, everybody here looks like a youngster यार. तू क्या पिटवाएगा आज? Age to start working out in the gym, according to you. बच्चे स्कूल गोइंग किड्स कहाँ हैं यहाँ पे हैं? स्कूल गोइंग किड्स अगर इनको बताना पड़े कि कब वर्कआउट करना है तो ऑलरेडी देर हो चुकी है. इनके जो टीचर थे अभी, वो मुझको ऐसा लग रहा है कि वो खुद बॉलिंग करते हैं, बैटिंग करते हैं, और सारे बच्चे जो हैं उनको एक एक करके बॉलिंग डालते हैं. यार ये आदमी सिर्फ बैटिंग प्रैक्टिस करता है. आई वुड बी दैट टीचर. मैं ना
स्पोर्ट्स उसमें सब तुम बॉलर हो, सब 40 बॉलर्स, सबके हाथ में बॉल, बस घुमा घुमा के. नो, आई थिंक बच्चों के लिए ऐसा है कि एज अ पेरेंट आई कैन से just let them be outside the house, kick them out in a safe environment. ये नहीं कि बाद में बोलो कि गुम हो गया, रणवीर जी ने बोला था. नहीं, अपने अपने हिसाब से. चाहे वो खो खो खेल रहे हो, चाहे वो कबड्डी खेल रहे हो, चाहे वो गिल्ली डंडा खेल रहे हो, भागना, चाहे वो, मैं तो एक टाइम पे ऐसे हेज जंप करता था. हेज होती है ना सबके गार्डन में, क्या तू हेज जंप कर सकता है कि नहीं? पता नहीं, वेले थे बचपन में हेज जंप कर रहे हैं, वो मैंने ज़्यादा अच्छा किया, तेरा टच हो गया ऐसा, ठीक है. फिर पेड़ चढ़ जाते थे, जामुन के पेड़ होते थे. अब वो पेड़ चढ़ना भाई, पता है 7-8 पुलअप कर गया मैं, मतलब बचपन 11-12 ईयर्स के. आप पेड़ चढ़ रहे हो, आप तो मस्ती के लिए चढ़ रहे हो ना. वो जामुन के बाद वो जो आपकी जुबान जो पर्पल होती है वो दिखानी है आपको, क्या तो हमने फ्री में तो बच्चों को खेलने दो. ओके, जैसे ही उनको कोई चीज़ में दिलचस्पी आती है ना, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल अच्छा खेल रहे हैं, तो उनको ऐसा शो सम प्राइड इन देम. पेरेंट्स को बोल रहा हूँ मैं बच्चों को तो कुछ बोल ही नहीं सकता. बच्चे तो ऑलरेडी खेलना चाहते हैं, उनको बस एक ग्रीन सिग्नल चाहिए, फाटक खुल जाए, ठीक है. तो एक सेफ एनवायरनमेंट जहाँ पे माता पिता का काम है, उनको बोलो कि स्कूल में खेलो. वॉलीबॉल खेलते हो? अरे मैं भी खेलता था. सडनली द किड इज लाइक, ओह वाओ, ओह माय डैड, ओह ही विल बी हैप्पी, ही विल बी प्राउड दैट आई एम प्लेइंग. वाओ. अगर मेरे पास, तो मैं चाहता हूँ अगर मैं तो कोई भी स्पोर्ट खेल सकता हूँ, क्योंकि थैंक्स. तो एनी स्पोर्ट दैट माई किड्स आर प्लेइंग, मैं उनके साथ खेलना शुरू कर दूंगा, बिकॉज दैट्स मोर टाइम दैट यू आर स्पेंडिंग. माई डैड वॉज 27 when he had me young, and by the time मैं 13 he was 14 या, तो हर स्पोर्ट में मेरे को पेल देते थे. स्क्वॉश, कमाल है, व्हाट अ गाय यार. मैं वहाँ पे हाउस मैचेस खेल रहा हूँ, बोर्डिंग स्कूल में जीत के आ रहा हूँ, यहाँ पे कर्नल साहब पेल रहे हैं मुझे. मैंने कहा यार ये क्या है. फिर धीरे धीरे ना, दैट होल 15, 16, 17, यू स्टार्ट बिकमिंग बेटर, योर फादर गिव्स यू द टॉर्च, यू टेक इट ओवर. एंड आई एम लाइक, मैं अभी, मेरा बेटा 1.5 साल का है, मैं 39 का हूँ, तो मुझे तो 52 तक फिट रहना पड़ेगा, ताकि उसको मेरे को पेलना है अभी 4-5 गेम्स में, राइट. तो उसको समझ आएगा कि मैं नहीं हूं कि मेरे को वीडियो ये देख बिल्डिंग पे जंप. आई एम नॉट दैट गाय. आई हैव टू शो हिम, आई हैव टू शो हर. शी इज 6 years old, शी नोज आई एम ऑलरेडी हर सुपर हीरो. वो तो है. कभी भी तालियां बज रही हैं. बट in my regime now, the thing is, the day that I'm going to the park, today my wife is saying, okay, when you come back, we have to go to this park, and their 4 friends are there. So when I go to the park, I'm like, today I'll do all the bars. तो मैं pull-ups, push-ups, dips, sprints, और बच्चे भी मेरे पीछे भागने पड़ते हैं. इसमें जो बर्न हो गया बहुत हो गया, ठीक है. बिकॉज आई एम नॉट बिल्डिंग फॉर अ सर्टन थिंग. इफ समबडी सेज मधुर सर है, इफ ही सेज कि रणविजय अगली पिक्चर में, तो उसके लिए मैं बिल्ड करूंगा, वो मेरा काम है, उसका अलग साइंस है. जिम जाने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए बच्चों को, राइट. आप जो स्पोर्ट खेल रहे हो उसके लिए कंडीशनिंग होती है. बास्केटबॉल खेल रहे हो, जर्मन ड्रिल्स हैं, आपको पुशअप्स करने हैं, आपके कोच करवाएंगे, ठीक है. फिर वो बोलेंगे हिट द वेट रूम, या शोल्डर के लिए ये करो, ट्राइसेप के लिए ये करो, बिकॉज उससे आपकी शूटिंग जो गेम है बेटर हो जाएगा. क्रिकेट के लिए अलग है, राइट. स्टेबिलिटी चाहिए होता है, बैलेंस चाहिए होता है. लेकिन एक्टिव रहना जरूरी है, और बचपन में तो एक्टिव रहना बहुत. जैसे ही ऐसा वर्ल्ड कप आता है तो सब रोनाल्डो और मेसी बन जाते हैं. खेलो बाहर जाके. पकड़ पकड़ाई यार, रिमेंबर पकड़ पकड़ाई. तो जब स्पोर्ट्स से पहले गेम्स होती हैं, लॉक एंड की, खेलो. और थोड़ा सा बच्चों का खेला और उनको बोलो, मैंने देखा किसी ने तेरे को पकड़ नहीं पाया तेरे को. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बाकी अपनी लाइफ में I play basketball, I play something called paddle, I play ultimate frisbee, I play badminton, squash. When my parents are around, then I go for golf. मेरे को इतनी अच्छी आती नहीं है, लेकिन उनके साथ 18 holes बातें करना, वो आपस में उनका चलता रहता है. 1-2 hour उनके साथ बातें करना, वॉक करना. So I take opportunities, and then somebody will say, hey man, हम लोग उस दिन उस पिकनिक पे जा रहे हैं. मैं कह रहा हूँ मैं ना साइकिल पे आ जाऊँगा वहाँ पे. तो उस दिन साइकिलिंग हो गई 2-3 घंटे, फिर मतलब किसी की गाड़ी में रख के वापस. तो आई एक्चुअली काइंड ऑफ स्टील एक्टिविटीज़. उस दिन हम लोग गए बीच पे, तो बच्चों के साथ जाना था, तो मैंने कहा ठीक है,
फिर मैंने बोला 1 घंटे के लिए पैडल बोर्ड करें, तो पैडल बोर्ड पे खड़ा होना, कोर ये वो भी हो गया। फिर किसी बच्चे ने बोला उसको लेके चले गए, 4-5 बार हो गया, फिर दर्दें भी शुरू हो गया ना वर्कआउट मस्ती मस्ती में। और बाकी सब मेरी वाइफ की फ्रेंड्स कह रही हैं वड़ा गाय यार, क्या बंदा है, तालियां अलग बज रही हैं वहाँ पे। तो ये है, मतलब वहाँ पे जब मैं पार्क में जाता हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, बच्चे भी कर रहे हैं, बच्चों को लटका रहा हूँ, फिर मेरी वाइफ की फ्रेंड्स, वाह वड़ा गाय यार। वो मेरी वाइफ घर आके क्या बोलती है, वड़ा गाय यार, वड़ा गाय। तो आपका बैकग्राउंड आर्मी से है, आपका फैमिली बैकग्राउंड, तो वो आपकी लाइफस्टाइल को कैसे इन्फ्लुएंस करता है? लाइक Oh, a lot. Just, you know, when we used to step out of the house, हम रेजिमेंट में होते थे, तो वहाँ पे ऑब्स्टिकल कोर्सेज थे। तो ये जो रोडीज पे जो अभी मैं करता हूँ आराम से, वो इसीलिए कि बचपन से मैं रस्सी पे बंदर की तरह लटका हुआ, वो बर्मा ब्रिज, वो बचपन से कर रहे हैं ऐसे मस्ती में। यहाँ से बास्केटबॉल कोर्ट के बीच में ऑब्स्टिकल कोर्स है, तो बास्केटबॉल खेलने जाने से पहले साहब 5 मिनट कर दिया, वापस आने अरे कैन यू डू दिस वन, कैन यू डू कमांडो जंप। तो वो बहुत फ़ायदा था। आई थिंक आई वॉज वेरी, आई थिंक नहीं, आई नो मी एंड माई ब्रदर वर वेरी प्रिविलेज्ड बिकॉज वी वर ब्रॉट अप इन द इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइजेशन। इससे बेहतर ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं, ठीक है। So I just wanted to ask, like, how did you choose acting as a career? Like, इट हैपेंड। ये एक्टिंग कोई है तो नहीं है। ये जो है ना वर्ल्ड हेल्थ एंड वेलनेस फेस्ट, ये इंडियन आर्मी में जब से शुरू है, उनकी लाइफस्टाइल है। उनके जो सीनियर ऑफिसर्स है वो जूनियर्स में ये चीज़ें इनकलकेट करते हैं, उनमें ये चीज़ें भरते हैं, बेटा सुबह उठो पीटी करो, ये और कुछ नहीं है, ये हेल्थ एंड वेलनेस है। उसके बाद जाओ काम करो एडमिन, शाम को वो जाता है, दोपहर को आते हैं और ऑफिसर्स बार पे बैठ के वो ऐसे कुछ पीते हैं एक साथ और फिर लंच एक साथ खाते हैं। दैट इज वेलनेस, कॉमराडरी, यू हैव टू डी स्ट्रेस। फिर शाम को गेम्स, ये अपने जितने भी सोल्जर्स हैं उनके साथ कॉमराडरी, शेयरिंग, बॉन्डिंग। और फिर शाम को दोबारा एक साथ ऑफिसर्स बैठे हैं। जो ऑफिसर्स मेस की आपने इमेजेस देखी हैं, इट इज नॉट कि यार क्या वाह हाउ दे वाइन एंड डाइन, ये हेल्थ एंड वेलनेस एक इंस्टीट्यूट ने इंस्टिल कर रखी है अपने में। तो आर्मी की वजह से ही मुझे ये पता है कि जरूरी नहीं कि मुझे जिम जाना है, वो जिम जाने से ऐसा वो होता है until unless I'm working for something particular। उसकी वजह से मुझे पता है कि हाँ मैं वॉलीबॉल भी खेल सकता हूँ, हैंडबॉल भी खेल सकता हूँ, स्क्वॉश में मजा आएगा, स्विमिंग पूल भी, बीच में भी जा सकते हैं। हमें एक्टिविटी करनी है, एक्टिव रहना है, और जितनी अलग अलग चीज़ें करेंगे विल शॉक आवर बॉडीज, उतना ये जो है ना पूरा अजाइल रहेगा। थोड़ा ठीक ठाक देख लो क्या खाना है क्या नहीं खाना, किसी चीज़ को मिस मत करो, पर हर एक ही दिन में सब मत पेलो, अलग अलग दिन पराठे भी पेल दो, क्यों नहीं। on that note, I want to ask कि एक फेमस saying है कि अगर आपका मन का आप खाते हो, तो then if your मन is चंगा, then your तन is चंगा। Yes. Like, do you agree with that? यू नो, ये बड़ा, ये उस टाइम की सेइंग है जब सबका लाइफस्टाइल बहुत अलग था। जब लोग स्कूल जाते 15 किलोमीटर चलते थे, जब लोग खेतों में काम करते थे, तो तब की सेइंग है और तब के लिए बिल्कुल एप्ट है। अभी हम लोग फिजिकल एक्टिविटीज करते ही नहीं है। अभी तो हम बस स्टैंड तक नहीं जाते क्योंकि हम वो यहीं पर ऑर्डर कर लिया, घर के बाहर वो पिन भी अपने यहाँ पे आके लगाया है कि मैं यहाँ से एसी से निकलूँ तो इस एसी में घुस जाऊँ। तो उस टाइम के लिए बिल्कुल सही था कि जो भी खाओ पच जाता था। सो आई फील लाइक इफ योर लाइफ स्टाइल इज लाइक दैट, एक्टिव है तो एप्ट है।